Assalamu alaikum to everyone. Continuing with our lecture series on D and F block elements. Today we are first of all going to discuss another property of transition metals, that's ionization energy of transition metals. Previous lecture में हमने discuss किया था size, density, melting and boiling points. Now in this lecture we'll start with ionization energy of transition metals. As you know that ionization energy is the amount of energy that is required to remove the electron from isolated gaseous atom. Ionization energy is the amount of energy that's required to remove the electron from isolated gaseous atom in its ground state. ये कोई element A है, gaseous state में है, इसको आप energy दे रहे हो, and this energy will help to eliminate the electron, and you will get a positive gas plus electron. This energy that's required here, this is called as ionization energy. You may have discussed this in class 11th. This is ionization energy. There are different factors which affect ionization energy that you know. ठीक, जिनमें से साइज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. अगर साइज कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी. Now in this lecture we will discuss ionization energy of transition metals with reference to first transition series. Likewise, जो हमने पिछले लेक्चर्स में एक सीक्वेंस बनाई थी, 3 टाइप का डिस्कशन हमें करना है. पहला डिस्कशन होगा इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा होगा डाउन द ग्रुप दैट इज 3D to 4D to 5D सीरीज, एंड तीसरा होगा विद इन अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज इन रेफरेंस टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट कंपैरिजन विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. As far as S block elements and transition metals are concerned, अगर हम इनका comparison लेंगे, again I will write here S block elements and transition elements. When you go across the period, ऐसे जाओगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस. जब साइज डिक्रीज होगा तो ट्रांजिशन मेटल्स का साइज यू नो दैट एस ब्लॉक के कंपैरिजन में कम है. ट्रांजिशन मेटल्स का साइज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज एस ब्लॉक के कंपैरिजन में कम है. इसका मतलब ये होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ज्यादा होगी. सो पहला पॉइंट हमारा बनेगा, ट्रांजिशन मेटल्स हैव मोर आयोनाइजेशन एनर्जी इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, सो पहला पॉइंट जो हम यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल्स have more ionization energy, IE represents ionization energy in comparison to S block elements. In comparison to S block elements, रीजन है इनका साइज कम है, स्मॉल साइज, एंड सेकेंड पॉइंट जो इनमें है दैट स्मॉल साइज एंड मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एंड मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इनका साइज कम है
और दूसरा पॉइंट जो है इनमें, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ज़्यादा है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट and a very important point. Before going to ionization energy discussion down the group, that what will happen to the ionization energy if we will move from 3D to 4D series and then 4D to 5D series. Down the group, if you move from 3D to 4D series, 4D to 5D series, अगर मैं यहाँ पे इसकी representation देता हूँ 3D to 4D, 4D to 5D, what will happen to the ionization energy? General trend जो periodic table में है, in any group, as we move down the group, size बढ़ता है, size increases. Size बढ़ने की वजह से ionization energy decreases. Again I repeat my statement. As we move down the group, साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. दिस इज जनरल एंड नॉर्मल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. ठीक है, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 3D टू 4D साइज बढ़ता है, लेकिन 4D और 5D का साइज सेम होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो अगर मैं साइज की बात कर लेता हूं, इफ आई डिस्कस आर that size, atomic radius या metallic radius, 3D का साइज लेस देन 4D और जिनका साइज 5D के साथ एक जैसा होता है, कंपेरेबल होता है. और इसका रीजन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट वाज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, 4D एंड 5D का साइज सेम है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो इसका मतलब यह है कि साइज हमें हेल्प नहीं करेगा टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन दीज टू, बिकॉज साइज इज नियर सेम. अब डिसाइड कौन करेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ऑलवेज रिमेंबर दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5D का है. So I will write it here. Z effective of 5D is greater than Z effective of 4D, which is greater than Z effective of 3D. सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5D सीरीज का यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है. ठीक है, तो इनका साइज तो सेम है, लेकिन इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5D का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4D से ज्यादा है. जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी 4D सीरीज से ज्यादा. ठीक है, 4D और 5D का साइज सेम है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो साइज डिसाइड नहीं करेगा. अब डिसीजन जो होगा दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. 5D का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4D के कंपैरिजन में ज्यादा है, इस वजह से 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी 4D सीरीज से ज्यादा है. ठीक है, नॉट ओनली दैट, आई एम गिविंग अनदर स्टेटमेंट. 5D का 4D से ज्यादा, अंडरस्टैंड हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. नॉट ओनली दैट, 5D का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होता है दैट इट ऑल्सो ओवरकम्स द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D ऑल्सो. तो 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी खाली 4D से ज्यादा ही नहीं होती है, इट्स ऑल्सो ग्रेटर देन द 3D बिकॉज ऑफ इट्स हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, तो यहां पे ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है. ट्रेंड कैसे डिफरेंट है? 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी 3D एज वेल एज 4D से ज्यादा है. उसके बाद 3D और 4D में साइज के बेसिस पे कंपैरिजन कर लीजिए, तो साइज के बेसिस पे 3D की आयोनाइजेशन एनर्जी 4D से ज्यादा है. सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस वे. आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा 5D सीरीज की बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डोमिनेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. उसके बाद 3D और 4D में
3D का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, 4D का साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो अगर मैं बात करूँगा नॉर्मल इन पीरियोडिक टेबल, डाउन द ग्रुप size increases, as a result ionization energy decreases. In case of transition elements, when you move down the group, 3D to 4D size increases, but 4D and 5D are having similar size because of lengthenoid contraction. Effective nuclear charge of 5D series is so dominant, as a result of that the maximum ionization energy in the transition elements is for 5D, then we have 3D and then we have 4D. So transition elements में down the group जो ionization energy का variation है, ठीक है, so ionization energy of 5D is greater than 3D, which is greater than 4D series, and this is a very important variation. 5D की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों है? इसका जो रीजन है दैट इज Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब 3D और 4D में साइज डिसाइड करेगा। R of 3D is less than R of 4D. Metallic radius of 3D, size of 3D series is less than size of 4D series. As a result of that, ionization energy 3D series की ज़्यादा है in comparison to 4D series. So this is variation of ionization energy of transition elements down the group. ठीक, अगेन आई रिपीट, 5D का सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देन 3D और 4D में साइज मैटर करेगा, 3D ग्रेटर देन 4D। दिस इज वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। ठीक है, सो पहला वेरिएशन हमने लिया इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा वेरिएशन हमने लिया डाउन द ग्रुप। तीसरा और इंपॉर्टेंट वेरिएशन जो हमें लेना है दैट्स अलोंग ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज। जब आप किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट विल हैपन टू द आयनाइजेशन एनर्जी? एज फार एज variation of ionization energy along the transition series, when you move along the transition series, in general there is increase in the ionization energy, but that is gradual increase। दो elements के बीच में जो ionization energy का gap है वो बहुत कम है। It is because इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दो एलिमेंट्स के बीच में जो बाकी ब्लॉक्स में एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस होता है उतना ज्यादा नहीं है। सो देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। सो फर्स्ट पॉइंट, along the transition series, ionization energy increases gradually from left to right। ठीक है, तो if I write scandium to zinc, in general ionization energy increases gradually, not steep increase, gradual increase, because of increase in the effective nuclear charge that you know। लेकिन effective nuclear charge के साथ साथ स्क्रीनिंग भी बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। ठीक, नाउ as far as first ionization energy is concerned, first ionization ये तो जनरल मैं दिखा रहा हूं। फर्स्ट ionization एनर्जी में इर्रेगुलर ट्रेंड है। इर्रेगुलर ट्रेंड का मतलब ये है कहीं पे इंक्रीज हो रहा है और कहीं पे डिक्रीज। जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बट कहीं पे इंक्रीज होना चाहे वहां डिक्रीज होता है और कहीं पे डिक्रीज होना चाहे वहां इंक्रीज होता है। So that's irregular trend in the first ionization energy. So I will write here first ionization energy shows irregular variation।
irregular variation along the transition series, ठीक। ये irregular variation क्यों है, इसका भी रीजन हम देंगे। पहले मैं ग्राफिकली इसको दिखाना चाहता हूं। अगर हम प्लॉट कर लेंगे, इफ वी प्लॉट ionization energy versus atomic number for first transition series, irregular variation, scandium to titanium इंक्रीज हो रहा है, फिर वेनेडियम और क्रोमियम में डिक्रीज, फिर मैग्नीज आयरन में फिर से इंक्रीज, फिर कोबाल्ट निकल कॉपर में डिक्रीज, और फिर जिंक में फिर से इंक्रीज हो रहा है। कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इट्स कोबाल्ट, निकल, इट्स कॉपर एंड जिंक। दिस इज IE फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। पहले मैंने लिखा अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज इन जनरल, इन वेरिएशंस को छोड़ के इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक। दिस इज दैट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जब आप प्लॉट करोगे यू गेट इर्रेगुलर वेरिएशंस। तो हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए था इंक्रीजिंग ट्रेंड के हिसाब से, बट यू आर सेइंग दैट देयर इज इर्रेगुलर वेरिएशन, कहीं पे अप्स कहीं पे डाउन्स। इसका रीजन है क्या? द रीजन बिहाइंड दिस इज, जो बार बार मैंने आपसे कहा, द रीजन बिहाइंड दिस इज SD transitions. SD transition. Now what do you mean by SD transition? SD transition का मतलब है electron can move easily from 4s orbital to 3d orbital. यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करता है from 4s to 3d orbital. इट इज बिकॉज इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी लेवल जो इनकी है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है। इलेक्ट्रॉन आसानी से 4s to 3d जाएगा, जिसकी वजह से कहीं पे स्टेबिलिटी आ सकती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। आई विल डिस्कस 2 एलिमेंट्स जहां से आपको आइडिया मिलेगा व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी में डिप हो रहा है, ठीक है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन क्रोमियम, उसके बाद मैं वेनेडियम पे आता हूं। एज पर एज क्रोमियम इज कंसिडर्ड, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इफ आई राइट क्रोमियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट्स आर्गॉन 3d5 4s1। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैं डिस्कस कर रहा हूं। जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे यू विल फॉर्म क्रोमियम पॉजिटिव, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गॉन 3d5। क्रोमियम पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, d5 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेबल है। जब ये स्टेबल होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अगेन आई रिपीट, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट्स आर्गॉन 3d5 4s1। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इट विल बी 3d5। नाउ दिस इज 3d5 एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला इट्स कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने का मतलब है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू क्रोमियम। नाउ वेनेडियम इंपॉर्टेंट, ठीक है।
एज फार एज वेनेडियम इज कंसिडर्ड, वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट्स आर्गॉन 3d3 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेनेडियम की है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे आप, यू विल गेट वेनेडियम पॉजिटिव। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एस से निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनने वाली है? इट विल बी आर्गॉन 3d3 4s1, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। वेनेडियम आर्गॉन 3d3 4s2। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, यू विल गेट वेनेडियम पॉजिटिव, इट्स आर्गॉन 3d3 4s1, ठीक है। नाउ आई हैव डिस्कस्ड SD ट्रांजिशन। SD ट्रांजिशन का मतलब ये है दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम 4s to 3d। जब SD ट्रांजिशन होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इट विल बी आर्गॉन 3d4, ठीक। सो पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया 4s से, सो इट विल बी 3d3 4s1। क्योंकि S और D की एनर्जी लेवल्स बहुत क्लोज है, देयर विल बी SD ट्रांजिशन। SD ट्रांजिशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन S का इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, नाउ यू विल गेट 3d4 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, 3d4 में ऐसा कौन सा स्टेबिलिटी फैक्टर है जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप होती है? ये तो टाइटेनियम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन टाइटेनियम से कम क्यों आ रहा है? ऐसा कौन सा स्टेबिलिटी फैक्टर है D4 कॉन्फ़िगरेशन में जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है? लेट मी एक्सप्लेन दैट। एज फार एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कंसिडर्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 3d3। Let me write the d orbitals 1 2 3 4 5. These are 3d orbitals, ठीक है। तो 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है, इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देयर, सेकंड इलेक्ट्रॉन देयर, थर्ड इलेक्ट्रॉन देयर, ठीक है। आपने क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी पढ़ा होगा। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने डिस्कस किया होगा। इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एक्सचेंज पेयर्स। 3d3 में नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स कितने बनेंगे? ये हो गया 1, ये हो गए 2 और ये हो गए 3, ठीक है। तो 3d3 कॉन्फ़िगरेशन में 3 एक्सचेंज पेयर्स बनते हैं, 3 एक्सचेंज पेयर्स, ठीक। अगेन आई रिपीट, इट इज 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन्स D में है। तो ये D इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज करेंगे तो कितने एक्सचेंज पेयर्स बन सकते हैं? दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद दिस, दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद दिस, और ये दो आपस में एक्सचेंज करेंगे तो आपके पास 3 एक्सचेंज पेयर्स आ गए। नाउ जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसकी वजह से SD ट्रांजिशन होगा, यू विल गेट D4। नाउ लेट मी राइट D4, 1 2 3 4 5, ये d orbitals है। Now you have got d4 configuration, electrons are there 1 2 3 4, this is d4 configuration, ठीक है। Now let me count the number of exchange pairs। चले exchange pairs count कर लेंगे हम। पहला exchange pair ये, this is first one, this is second one, this is third one, this is fourth one, ठीक है, and this is fifth one, and this will be the sixth one, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 इनके साथ एक्सचेंज कर सकते हो गए इसके 3, ये इसके साथ हो गए 2, और ओबियसली ये इसके साथ कर सकता है। सो वी हैव 6 एक्सचेंज पेयर्स। तो हमारे पास अब 6 एक्सचेंज पेयर्स बन गए। पहले कितने एक्सचेंज पेयर्स थे? 3। अब कितने एक्सचेंज पेयर्स बन गए? 6 एक्सचेंज। सो नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स डबल हो रहा है। एंड यू नो दैट व्हेन एक्सचेंज पेयर्स आर फॉर्म्ड, जब एक्सचेंज ऑफ पोजीशंस होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उस वजह से एनर्जी रिलीज होती है, दैट लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स डबल हो रहा है। तो डबल होने का मतलब यहां से एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा।
जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगा, यू रिक्वायर लेस आयोनाइजेशन एनर्जी टू एलिमिनेट दैट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है D4 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज पेयर्स का नंबर डबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू D3। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस ज़्यादा है एंड हेंस दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली रिमूव्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वेनेडियम में भी डिप है, क्रोमियम में भी डिप है। सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन कोबाल्ट, निकल, कॉपर with the help of exchange pairs. As a result of that, first ionization energy में irregular trend है and कहीं पे ups कहीं पे downs, और मैंने दिखाया this arises because of SD transitions more importantly, and then sometimes we'll get electronic configuration. This is variation of first ionization energy of 3D series with atomic number. Hope you would have understand. Now let me go to the second ionization energy. In comparison to first ionization energy, second as well as third, वहां पे ज्यादा रेगुलर ट्रेंड है। तो नॉर्मल ट्रेंड होता है विथ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज। तो अनलाइक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड है, कंटिन्यूअसली एनर्जी इंक्रीज होता है। कहीं कहीं पे मिनिमम वेरिएशंस है, अदरवाइज सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में एक रेगुलर ट्रेंड है। और वो ट्रेंड क्या है? विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आयोनाइजेशन एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। सो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं प्लॉट कर लेता हूं, तो पहला फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमने लिया। लेट मी गो टू द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम प्लॉट कर लेंगे फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली विल बी अबव द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज इन जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन दो जगह पे आप देख रहे हो, दो जगह पे डिप्स है या दो जगह पे स्टीप इंक्रीज है। ये दो पॉइंट्स, आई विल सिलेक्ट दीज पॉइंट्स एंड आई विल पिक द एलिमेंट्स एंड आई विल एक्सप्लेन दिस। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, IE2। ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी था, दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये जो एबनॉर्मेलिटीज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में है, ये दो एलिमेंट्स में आता है। फर्स्ट एलिमेंट इट्स क्रोमियम एंड सेकेंड एलिमेंट इज कॉपर। दो एलिमेंट्स, क्रोमियम एंड कॉपर। Remember that it is second ionization energy when you have to remove second electron, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस कुछ ऐसे होगा, मेटल पॉजिटिव इज कन्वर्टेड टू मेटल डाई पॉजिटिव। दिस इज IE2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। वी आर प्लॉटिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। दो एलिमेंट्स का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। पहली बात, कहां कहां ज्यादा है? क्रोमियम और कॉपर में। नंबर सेकंड, क्यों ज्यादा है वो एक्सप्लेन कर लेंगे। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलरेडी यू नो दैट क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d5 4s1, और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स आर्गॉन 3d10 4s1। नाउ गो फर्स्ट टू द क्रोमियम। इट इज क्रोमियम पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल चुका है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी क्रोमियम पॉजिटिव की, तो क्रोमियम पॉजिटिव टू क्रोमियम डाई पॉजिटिव जब आप डिस्कस कर लोगे, क्रोमियम पॉजिटिव विल बी 3d5 configuration and chromium dipositive will have 3d4 configuration. Now let's explain. 3d5 it is more stable because of half-filled configuration.
more stable. And 3d4 obviously d5 से कम stable है, it's less stable. More stable, less stable. So you are converting more stable configuration to less stable. As a result of that, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस थोड़े से कम बनेंगे. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए. नॉर्मल वैल्यू जो होगा उससे ज्यादा चाहिए, बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इस वजह से क्रोमियम का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा है. This is explanation, because you are converting more stable configuration to less stable configuration. And similar explanation is for copper. Let me write copper है. So you are converting copper positive to copper dipositive. Copper positive की configuration 3d10 और copper dipositive की configuration 3d9. Again d10 more stable configuration, and d9 it is less stable configuration. फिर से आप वही चीज कर रहे हो. More stable configuration is converted to less stable configuration. As a result, इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो नॉर्मल से ज्यादा होगी, and hence कॉपर की भी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. दिस इज वेरिएशन ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. नाउ मूविंग टू द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. पहले मैं बता चुका हूं सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वेरिएशन है दैट्स एज पर नॉर्मल और रेगुलर ट्रेंड. तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का भी रेगुलर ट्रेंड ही होगा, एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट्स. Only one point I think there. So वो कुछ इस तरीके से होगा. थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का प्लॉट सेकंड के ऊपर होगा. दिस इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. अगेन एक ही जगह आप डिप देख रहे हो, बट आई विल एक्सप्लेन 2 points. ये वाला नॉर्मल से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड दिस एलिमेंट हियर विल बी मैग्नीज, एंड सबसे टॉप पे मैक्सिमम इट विल बी जिंक. इनको भी बिल्कुल आराम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहला मैग्नीज और फिर जिंक. मैग्नीज की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल से ज्यादा, और जिंक की तो सबसे ज्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है. हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट? बिल्कुल सिंपल तरीका एक्सप्लेन करने का, यही चीजें हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करके. But remember, this time I am discussing third ionization energy. Third ionization energy will be metal plus 2 ionization energy. Third, it is converted to metal plus 3. Metal plus 2 is converted to metal plus 3. ठीक? Now, how are we going to explain it? Let me first of all write electronic configuration of manganese. Manganese की जो electronic configuration है, that's argon 3d5 4s2. 3d5 4s2. Let me write manganese here. Manganese dipositive is converted to manganese tripositive, and you require ionization energy third. Manganese 2 positive, जब दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली बनेगा 3d5, और मैग्नीज ट्राइपॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है 3d4. 3d5 is converted to 3d4. Again, d5 more stable configuration, d4 less stable configuration. You are converting more stable electronic configuration to less stable electronic configuration. As a result, मैग्नीज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी मोर देन द नॉर्मल वैल्यू. इस वजह से मैग्नीज की आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पे थोड़ा सा ज्यादा है. लास्ट पॉइंट है जिंक. जरा जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम. एज पर एज जिंक इज कंसिडर्ड, जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स आर्गॉन
it will be 3d10 4s2. Now this time I have to convert zinc 2 positive to zinc 3 positive. ठीक, ionization energy third, it is 3d10 configuration and it is 3d9 again. I am converting 3d10 d10 configuration more stable to less stable. ठीक है, इस बेसिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा होगा. एंड नंबर सेकंड, जिंक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, तो कंबाइंड फैक्टर ऑफ दीज टू, maximum effective nuclear charge, stable electronic configuration, it is nearly impossible to convert zinc 2 positive to zinc 3 positive. इस वजह से जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, that oxidation state is +2. ठीक है, so this is a variation of ionization energy along transition series with special reference to first transition series or 3D series. तो जनरली, इन जनरल जो हमने कहा, along the transition series effective nuclear charge increases, effective nuclear charge बढ़ रहा है. तो effective nuclear charge बढ़ने के साथ इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी भी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी. मैंने कहा ग्रेजुअल इंक्रीज, स्टीप इंक्रीज नहीं हो रहा, ग्रेजुअल. बहुत कम डिफरेंस होती है दो सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच में विथ रेस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है. लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत इर्रेगुलरिटीज है, और वो इर्रेगुलरिटीज मैंने दिखा दी और उनका रीजन भी एक्सप्लेन किया. इट इज बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द लॉस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम केसेस में एसडी ट्रांजिशंस की वजह से इर्रेगुलरिटीज आ जाती है. सेकंड और थर्ड में नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट्स जो हमने एक्सप्लेन किया. सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्रोमियम और कॉपर, stability D5 D10, and same is case with third ionization energy में particularly manganese का because of D5 to D4. This is how you explain the ionization energy in a particular transition series. तो तीनों points हमने explain किए. Last point, ionization energy can also explain the stability of the given oxidation state. जैसे कि मैंने जिंक में थोड़ा सा बता दिया. नीट जेडब्ल्यू वालों ने अक्सर एक क्वेश्चन पूछा है, निकल और प्लैटिनम दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, दैट इज ग्रुप नंबर 10. दोनों का सेम ग्रुप है, ग्रुप नंबर 10, निकल एज वेल एज प्लैटिनम. लेकिन निकल ज्यादातर कंपाउंड्स बनाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और प्लैटिनम के मेजॉरिटी कंपाउंड्स है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अभी हमने कहा किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए वन ऑफ द फैक्टर, नॉट ओनली फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल इज आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, अगर उस ऑक्सीडेशन स्टेट को लाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा, तब उसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे. अगर उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बनने में आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, एज अ रिजल्ट उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बनने के चांसेस कम है, और ओब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी कम है. जैसे मैं लेता हूं कोई एलिमेंट A, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्टेन करने के लिए वी रिक्वायर 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज, IE फर्स्ट प्लस IE सेकेंड. इनको मैं कहूंगा IE टोटल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे, पहली और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. सो दैट्स टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. अगर इस टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा तो इसके बनने के चांसेस ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. सिमिलरली अगर ये टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों का सम अगर ये ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आने का मतलब है इसके बनने के चांसेस कम है, तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो गई. ठीक है, नाउ निकल और प्लैटिनम का कंपैरिजन हम कर लेते हैं. दोनों में +2 भी है, +4 भी है, बट स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हमारा है, निकल +2 is more stable than platinum +2.
निकल +2 की स्टेबिलिटी प्लैटिनम +2 से ज्यादा है, ठीक है। रीजन, IE फर्स्ट प्लस IE सेकेंड in case of nickel is less than IE first plus IE second in case of platinum। यानी निकल में फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज का वैल्यू कम है, तो इसके बनने के चांसेस ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां पर ज्यादा वैल्यू है तो स्टेबिलिटी कम है। सो एज अ रिजल्ट +2 की स्टेबिलिटी ऑर्डर है निकल और प्लैटिनम में, निकल +2 मोर स्टेबल देन प्लैटिनम +2। नाउ इफ आई गो टू प्लैटिनम +4 एंड निकल +4, तो उनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से, प्लैटिनम +4 स्टेबिलिटी ऑर्डर है, प्लैटिनम +4 is more stable than nickel +4। उल्टा इस केस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, प्लैटिनम का +4 निकल के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल है। रीजन, IE फर्स्ट प्लस IE सेकेंड प्लस IE थर्ड प्लस IE 4, 4 आयनाइजेशन एनर्जीज का सम प्लैटिनम के केस में कम है देन IE फर्स्ट प्लस IE सेकेंड प्लस IE थर्ड प्लस IE 4 इन केस ऑफ निकल। निकल में 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज को अगर आप ऐड करोगे उसका सम ज्यादा बनता है इन कंपैरिजन टू प्लैटिनम। इस वजह से प्लैटिनम +4 की स्टेबिलिटी निकल +4 से ज्यादा है, ठीक है। सो किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है नॉट ओनली फैक्टर, आई रिपीट, आगे हम वही डिस्कस कर लेंगे। वन ऑफ द फैक्टर इज आयनाइजेशन एनर्जी। इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी उस ऑक्सीडेशन स्टेट को लाने के लिए जितनी कम होगी उतनी उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। दिस वाज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लिया। फर्स्ट डिस्कशन वाज इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के कंपैरिजन में आयनाइजेशन एनर्जी इनकी जो है दैट आयनाइजेशन एनर्जी is more because of small size as well as more effective nuclear charge. Down the group very important, सबसे ज़्यादा 5D, 5D के बाद 3D, 3D के बाद 4D, and along the transition series we have discussed it first, second as well as third। ठीक है, अगला point